Good evening, sir. Good evening, Ishan. So now in this session, we have a psychologist also. Let's see. We will look forward for your points. Good to see you. So now the Yas has left or still there? You are getting my voice. मम्मा मैंने लॉगिन कर दिया है हेलो I'm asking Ishan, Yas has gone or Yas is there? Yas. It's gone. It's gone. Yas has gone. Okay. Now everything is normal. Okay, everything is normal now. Good. But I think 24 hours it was. Yeah, I think it disturbed the whole Jharkhand and Bihar. Actually. And the most difficult part was electricity. Correct. So yesterday, I think there were 2 of my classes which did not take place because mobile was not charged, laptop was not in the right condition. Okay. Fine. So as of now, we are 3, and I think. Okay. So see now, someone is messaging. Light has gone. We'll try to join as soon as possible. That problem is still coming. Okay. And I got also 1 or 2 messages that anyway you are going to record it and put it on YouTube channel. We'll watch there. Fine. So I'm so happy Ina has come. Good evening, all. Good evening, everyone. Now it is complete. Now see, four people are there. 4 frames are filled. So I think without now delaying further, we should start, right? And I think I have shared the questions with Ina also. So what do you suggest, Ina? You will start first. You have the questions with you. I think yesterday I sent you. Yeah, I do have, but I'll be starting sharing the things on the second part. Okay. Just joined in. So let me start only. Let me start, and then all of you can take inputs from there, and then you can come in. Okay, fine. So I have something as a single slide. Let me all over. Fine. So now I think the screen is visible to all. Parenting Ki Pathshala, and Yes. and Absolutely. this is the poster. Be ready for summer vacation. So what happened few days back? One of my parents, they called up and they were telling me that now summer vacation is going to start. And I was wondering, because in Bihar and Jharkhand, this rain is happening because of that Yas cyclone. So the weather is pleasant. There is a feel of winter. Actually, we are using some bedsheet in the night. Right. And he was telling me we are going for summer vacation. So I was a bit confused. Then I realized that most of the schools in Bihar, they are getting closed from 1st of June. So the entire June, they are going to have summer vacation. And then we were wondering that first is lockdown, second COVID-19 challenges and all. And then again, schools are also closed. So that first half also is now free. So this is going to be a very tough time for parents to engage now their kids for 24 hours now. Now there's no support from school also. I don't know if they will give some assignment for summer vacation. Otherwise, assignment also is there, means you have to take care of that. So I thought of having this particular discussion, that are we ready for
summer vacation, how we should plan, what we should do, right? And then I got a few questions from Aradhana, which I passed on to Ina and Sapna. Sapna will join later on. So I have gathered few informations, few points in front of you, and I will start with this, and then later on Ina will give her inputs, and we have Ishan with us. Ishan is studying psychology, so he will give his inputs, and then we will conclude. So the first point which I thought, that how we plan a trip. Suppose I have to go to Kashmir or maybe South or maybe Masuri, any place. So we do our detailed planning, how we will go, how we will pack our bags, tickets planning, where we will stay, how we will hire the cab. So everything we plan, and then only we move for our trip, for our vacation. Similarly, we should not wait for the vacations to come. We have to do the planning beforehand. So everyone who is watching this session, I will request that the moment you have come to know that from 1st of June or 5th of June, there's a vacation happening in your kids' school, start planning. It's going to be a tough 30 days, so start planning, right? And overall planning, मतलब वो कब उठेगा, कब breakfast करेगा, what all subjects he will study, what time, how many hours, कब खेलने जाना है, क्या खेलना है. So detailed planning has to happen. जितना बढ़िया प्लानिंग आप करेंगे, उतना ही बेहतरीन आपका ये 30 दिन बीतने वाला है. फाइन. सेकंड, एक बात मैं बार बार बोलता हूं, एंड जिसको पेरेंट्स बार बार अवॉइड करते हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है या बहुत टफ है, टाइम टेबल. टाइम टेबल को लेकर के एवरीवन इज स्केयर्ड, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कौन उसको मॉनिटर करेगा. एंड आई ऑलवेज से कि टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है. अगर आपका बच्चा क्लास 2, क्लास 3 से ऊपर का है, टाइम टेबल वही बनाएगा, आप सिर्फ गाइड करेंगे. लेकिन आपको देखना है कि टाइम टेबल उसने ठीक से बनाया कि नहीं. एंड वो टाइम टेबल कहीं ना कहीं इट शुड बी पेस्टेड ऑन अ वॉल, जहां की सबकी निगाह जाए. वो काम सिर्फ मॉम का नहीं है. मॉम, डैड, दादा, दादी, जो भी घर में, बड़ा भाई, छोटी भाई, बहन, जो जिसको भी दिख रहा है, दे आर गोइंग टू फाइंड आउट कि भाई जो टाइम टेबल बना हुआ है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है. एक और बात सीक्रेट की है कि कभी भी टाइम टेबल 100% फॉलो नहीं होता है. हम बहुत बार परेशान हो जाते हैं, अरे टाइम टेबल लगा दिया, ये भी फॉलो नहीं हुआ, वो भी फॉलो नहीं हुआ. अगर आपका टाइम टेबल 50-60% फॉलो हो रहा है, फैंटास्टिक, डोंट वरी, गो विद दैट. अगर बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे इसमें चेंज करना है, यहाँ ये नहीं ये होगा, प्लीज डू इट, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छी हैंड राइटिंग में एक नए पेज में पूरा कॉपी करो, फिर से चिपकाओ, उसकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, फिर से वो लिखेगा, चिपकाएगा, फॉलो करेगा. बट द सीक्रेट इज दैट कि टाइम टेबल हमेशा उसकी हैंड राइटिंग में बनेगा. वो कन्विंस होगा कि हाँ भाई ये काम मुझे करना है, लिखेगा तो ही वो टाइम टेबल चिपकेगा. और अगर आपको उसको और ज्यादा बेहतरीन करना है, प्लीज टेल हिम टू साइन एट द एंड. सबसे नीचे बॉटम में वो साइन करेगा कि दिस टाइम टेबल हैज बीन मेड बाय मी एंड आई एम गोइंग टू फॉलो इट. फाइन. तो टाइम टेबल बनना है, वॉल पे चिपकना है. अगर चेंज होगा वापस वो फटेगा, नया चिपकेगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट ऑलवेज देयर हैज टू बी अ टाइम टेबल ऑन द वॉल. अगर आपके पास 2-3 बच्चे हैं तो वो बिल्कुल जगह फिक्स होना चाहिए, यहाँ पर इसका टाइम टेबल, यहाँ पर इसका, यहाँ पर इसका. और अगर आपने दोनों का टाइम टेबल चिपका दिया, देन रेस्ट एश्योर्ड कि वो आपस में एक दूसरे को चेक कर लेंगे, उसने अपना काम किया कि नहीं, उसने अपना काम किया कि नहीं. राइट. थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेकेशन हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, दैट एवरी चाइल्ड शुड हैव अ लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हमें लगता है कि इस घर के वो अभी मैच्योर मेंबर नहीं है, उनका कोई से नहीं है. नो, उनको मालूम होना चाहिए कि सुबह से लेकर रात तक इस घर को चलाने के लिए जितने भी काम हो रहे हैं, उसमें से काफी सारे काम ऐसे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर है. अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, क्या उनके कंट्रोल में है, क्या उनके कंट्रोल में नहीं है, बड़ा भाई क्या करेगा, छोटी बहन क्या करेगी, ये हमको बैठकर डिसाइड करना है कि बेटा देखो सुबह से लेकर के रात तक पहले मुझे ये काम करना है, फिर ये काम करना है, ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा. जिसने जिस चीज के लिए हामी भरी, आप उसने उसको कन्विंस कर लिया, वो रेडी है,
प्लीज उसका नाम लिखिए, लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और वो भी कहीं ना कहीं पेस्ट होना चाहिए। और चेकलिस्ट की तरह रात में आप चेक कीजिए कि सपोज देयर आर 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज और 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या वो सारे काम हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो बहुत ज्यादा चकचक नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, उसको थोड़ा सा रिमाइंड करना है, थोड़ा सा उसको सेंसिटाइज करना है और बोलना है कि कल ये सारे काम होने चाहिए, या अगर नहीं हुआ तो क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम है, डिस्कस करके अगेन हम उसको कल के लिए तैयार करेंगे। ये लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत काम करती है अगर आपने इसको ढंग से फॉलो किया तो। नाउ पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन था कि हम क्या क्या ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, व्हाट ऑल लर्निंग टूल्स आर अवेलेबल ऑनलाइन। तो ये मैं छोड़ता हूं इना के लिए, बिकॉज इना इज हैविंग सम सुपर प्रोग्राम्स फॉर किड्स, तो इना विल शेयर। और कुछ प्रोग्राम्स जो मेरे पास हैं दैट आई विल शेयर कि हम क्या कर रहे हैं। इसके अलावा नेट पे क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा कोई प्रोग्राम है जो अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। डांस से लेकर के, गिटार से लेकर के, पेंटिंग से लेकर के, स्टोरी टेलिंग, योगा, प्राणायाम, मार्शल आर्ट, व्हाटएवर यू वांट इज अवेलेबल ऑनलाइन। तो खाली आपको बस विश करना है, डिजायर करना है, और वो चीज अवेलेबल है। ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप कुछ भी कोर्सेज कर रहे हैं तो इना ऑल्सो हैज टोल्ड मी इन पास्ट कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या उसका कोई सर्टिफिकेशन साथ में है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बच्चे को अच्छा लगता है कि मैंने कोर्स किया एंड आई गॉट अ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा करिकुलर एंड फिजिकल एक्टिविटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कीपिंग इन माइंड द COVID-19 एंड थर्ड वेव, वी हैव टू कीप आवर किड्स in the best possible health, in the best possible momentum, right? तो हमको प्लानिंग करना पड़ेगा कि सुबह से लेकर रात तक एक्स्ट्रा करिकुलर में वो क्या काम करने वाले हैं, और पर्टिकुलरली फिजिकल एक्टिविटीज में वो क्या करेंगे। मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा बाहर जाना और खेलना अभी कहीं भी अलाउड नहीं हुआ है। वी आर नॉट डूइंग दैट। हम सब के पास अपना अपना टेरेस है, या कोई गार्डन है, या कोई जगह ऐसी है, वहां पर हम साथ बैठ करके वी कैन गो फॉर प्राणायाम, एक्सरसाइज, समथिंग, कुछ हम आपस में कुछ खेल सकते हैं। whatever we can do physically, we have to find out the space and we have to plan, but physical activity होनी बहुत 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 जरूरी है, राइट? हम सिंपल है कि हम रस्सी हमारे पास में है, वी कैन स्किप, डू स्किपिंग, बहुत सिंपल सा काम है, बड़ा अच्छा काम है, राइट? सो एक्स्ट्रा करिकुलर प्लानिंग और फिजिकल एक्टिविटी प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। नाउ कम्स एकेडमिक्स। एकेडमिक्स छूटना नहीं चाहिए, उस पर हमारा फोकस ना रहे, वो बिल्कुल प्राइम ऑब्जेक्टिव ना रहे, लेकिन छूटे नहीं। सो वी विल प्लान कि भाई अगर 1 महीने का वेकेशन है तो मेरे बच्चे का वीक पॉइंट्स क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जहां पर मुझे लगता है कि शायद स्कूल में इतना अच्छा वो नहीं कर पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, या मुझे उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। एंड आइदर यू कैन गो फॉर एन ऑनलाइन टीचर, और ऑफलाइन कोई अगर आपके बहुत ही करीबी है, आपका नोन है, यू कैन गो फॉर ऑफलाइन। इफ यू कैन टीच, प्लान फॉर दैट, लेकिन उसके टाइम टेबल में 2-3 घंटे जो भी उसका क्लास है उसके अकॉर्डिंग एकेडमिक्स पे फोकस होना ही चाहिए। एंड वी हैव टू टेल देम कि ये गोल्डन टाइम है कि जहां जहां भी आपने गैप एक्सपीरियंस किया है अप्रैल एंड मई में, वो सारे गैप्स आपके जून में फिल हो सकते हैं। एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू, तो वो काम पॉसिबल है। अगला पॉइंट है गैजेट टाइम। गैजेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरे लिए भी है। मेरे बगल में मेरा गैजेट रखा हुआ है, एंड इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब ये आपके बगल में है, कोई नोटिफिकेशन आता है, एंड सपोज यू आर फीलिंग बोर, मन करता है कि थोड़ा सा यूट्यूब खोल के थोड़ा सा कुछ वीडियोस देख लूं, थोड़ा सा स्मॉल क्लिप्स देख लूं, वो एक प्रॉब्लम है, हम सब के लिए प्रॉब्लम है। जब हमारे लिए प्रॉब्लम है, व्हेन वी आर मैच्योर इनफ, वी हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो बच्चों के लिए तो है ही। इसका एक ही सॉल्यूशन मुझे दिखता है कि वी हैव टू सिट डाउन एंड वी हैव टू डिस्कस कि तुम मुझे बताओ कि 24 घंटे में कितना समय तुम्हें मोबाइल पे देना चाहिए, उस समय में तुम्हें क्या करना चाहिए, जो भी तुम कर रहे हो क्या वो तुम्हारे किसी भी डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहा है। अगर वो इंटरटेनमेंट के लिए है, फैंटास्टिक। अगर कहीं उससे कुछ हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, फैंटास्टिक। और मुझे बताओ कि कितना समय तुम्हारे लिए मोबाइल पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कि मेरी आंखें भी डिस्टर्ब ना हो, आंखें खराब ना हो, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, रेडिएशन भी मुझे कम से कम मिले।
तो एक ये पूरा रेडिएशन एंड आंखों का प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम सब डिस्कस करते हुए आपस में अच्छे से बात करके वी हैव टू फिक्स अ टाइम, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, ये कितना होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मॉम एंड डैड एंड किड। मैं बीच में कहीं भी नहीं हूं, बट यू हैव टू फाइनलाइज कि वो कितने समय का होगा, दिन में कब से कब तक होगा और क्या होगा। एवरीथिंग हैज टू बी क्लैरिफाइड। अगर आपको यूट्यूब देखना है तो कब से कब तक, गेम्स खेलना है कब से कब तक, और एक बार जब वो फाइनलाइज हो गया, इट इज पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल, तब मुझे लगता है कि आपको कंट्रोल करने में दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज एवरी डे चैलेंज, हर दिन आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं, हर दिन आप उससे लड़ रहे हैं कि भाई अब छोड़ दो, अब माफ कर दो, तो हम इसको कहीं ना कहीं बात करके एक सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। द सेकंड लास्ट पॉइंट इज स्किल्स टू बी डेवलप्ड। अगर बच्चे हमारे थोड़े भी बड़े हैं तो हमें ये देखना होगा कि हम उनके अंदर क्या स्किल्स लेकर के आ सकते हैं इस लॉकडाउन में। और मैं आपको एक बताऊं, एक बड़ा चैलेंजिंग समय आया है अभी हमारे पास, जबकि बहुत सारे घरों में मॉम एंड डैड दोनों कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और बच्चों ने घर संभाला है। The boy and the girl, they have done the cooking, they have done the washing, they have handled the sweeping of the floor and everything. Mom and dad एक रूम में बंद हैं, वहां पे खाना मिल रहा है, वहां पे सामान मिल रहा है, and they have handled that 2 weeks time. और जब मैंने ये बात अपने जितने भी लोगों से मेरी बात होती है, मैं बोलता हूँ बी रेडी, बी रेडी, बी रेडी, तो बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को कैसे आटा गूंथना है, कैसे चाय बनाना है, कैसे रोटियां सेकनी है, वो सिखाना शुरू किया है। बिकॉज ये लड़ाई कितनी लंबी है, कब किसके घर में क्या आएगा, वी डोंट नो। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि कोई भी अगर एक आदमी अगर डाउन हुआ तो बाकी लोग तैयार हैं मिल करके उसको सपोर्ट करने के लिए। और ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। सो आप उसको किचन में लेकर के जाएंगे, गार्डनिंग सिखलाएंगे, कुछ स्टिच करना सिखलाएंगे, उसको कुछ बुनना सिखलाएंगे, क्या सिखलाएंगे वो आप उससे बैठ करके बात करके उसके इंटरेस्ट को देख करके अभी समय के डिमांड को देख करके आप डिसाइड कीजिए, ताकि ये 1 महीने में उसका स्किल डेवलप हो जाए और उस स्किल्स की मदद से आपका आपकी जो फैमिली है वो काफी स्ट्रांग हो जाए किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए। वो बच्चा खुद भी स्ट्रांग हो जाए लाइफ में अपने आप को स्टैंड करने के लिए। एंड आई विल टेल यू द रफेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोविड-19 जर्नी, जहां फैमिलीज में फादर हैज गॉन अवे, मॉम हैज गॉन अवे, सिर्फ किड्स बच गए हैं, सिर्फ बच्चे बच गए हैं। उन बच्चों को अब मालूम नहीं है हाउ दे आर गोइंग टू लिव देयर लाइफ, कौन उनको सपोर्ट करेगा, कैसे वो आगे सरवाइव करेंगे। सो इस कोविड ने हमें क्या नहीं सिखलाया है विकांत से। और ये एक अच्छा समय है कि हम इस वेकेशंस में अपने बच्चों को वो आत्मनिर्भर बनाना, उनको स्ट्रांग बनाना, हमारे फैमिली में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जो उनके बहुत ही करीबी हैं, उनसे बात कराना, उनसे उनकी फ्रेंडशिप डेवलप कराना, ये सब काम हमें करना पड़ेगा। समय का डिमांड है, करना पड़ेगा। एंड लास्ट में मैं बोलता हूं कि जितने भी पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे इसमें आप कमांडिंग नहीं करेंगे। अगर आप डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगा, यू कैन इम्प्लीमेंट इट। अगर आप कमांड करेंगे कि नहीं तुमको ये काम करना है, वो काम ठीक से नहीं होगा, बीच में बंद हो जाएगा, इट विल बी ओवर। सो दिस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 8-9 पॉइंट्स में समझ में आए, which I have told you. I will also share this slide with you so that कि आपके पास ये पॉइंट्स रहे और कहीं ना कहीं आप इसका इस्तेमाल कर पाएं। Now I am giving the next slot to Ina. Please, Ina, do the value addition in this. Sure, sir. Before I play the slide and tell the things कि हम क्या क्या करा रहे हैं, I think I would like to say few things before. मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो हमारी छुट्टियां होती हैं, I think वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ बच्चा बिल्कुल रिलैक्स होता है थोड़ा। हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, होमवर्क करो, ये सारे काम करो, मतलब वी आर आफ्टर द चाइल्ड्स लाइफ। होमवर्क तो टीचर्स ने दे ही रखा है, वो करना है, मजबूरी है। Although I am not in favor of homework during that time, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, उसकी वजह बताऊंगी। क्योंकि अगर आप 12 महीने एक जैसा चीज चलाएंगे, बच्चों को माइंड रिलैक्स नहीं होने देंगे, तो वो ओवरलोडिंग हर चीज की बुरी है, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे वो पढ़ाई की हो।
लेकिन क्योंकि कोई माँ बाप इस चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाता तो स्कूल वाले भर भर के खूब सारी पढ़ाइयाँ दे देते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाएं इस चीज पर। एज अ पेरेंट, क्योंकि मैं भी अपनी डॉटर्स को स्ट्रगल करते हुए देखती हूँ और अपने आप को भी हमने पढ़ते हुए देखा है, हमें होमवर्क उनके मुकाबले कम मिलता था। हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को ज्यादा वैल्यू कर पाते हैं, इवैल्यूएट कर पाते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी हमें चीजें ज्यादा याद है उनके मुकाबले। ऐसा नहीं है कि आज का बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, बेहद इंटेलिजेंट है। अगर उसकी कोई भी स्किल्स आप चेक करोगे वो हमसे शार्प है। लेकिन अब इतनी ज्यादा पढ़ाई, ज्यादा होमवर्क, ज्यादा राइटिंग, कहीं ना कहीं है तो वही 24 घंटे उसके पास भी, ना वो खेल पाता है, ना वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाता है। अब जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। माँ बाप ये सोचते हैं साला इतना तो पैसा दे दिया बच्चे को पढ़ने के लिए, स्कूल में झोंक गए हम पूरे के पूरे, और फिर भी हमारा बच्चा काबिल नहीं निकल रहा। ये बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में चलता है, ये कॉमन चीज है। देखिए, हमें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के साथ साथ उनको एम्पावर करना है। एम्पावर को सर हिंदी में क्या बोलते हैं? सशक्तिकरण। सशक्त करना है। हाँ, सशक्त करना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना काम स्वयं कर पाए। हम उनको छोड़ दें, चाहे वो गड़बड़ करें, करने दें, और ये चीजें उनमें धीरे धीरे आती हैं। अब पहले दिन अगर मैं अपनी बेटी से चाहूंगी वो चपाती बिल्कुल मेरे जैसी बना दे, नामुमकिन। मैंने भी नहीं बनाई थी, मुझे अभी भी याद है, पता नहीं कौन सा नक्शा बना बना के रख दिया था, और आंखों से आंसू और निकल जाते थे कि ये कहाँ झोंक दिया, क्या है ये क्यों ये काम हमसे हो नहीं रहा है। उसकी वजह ये थी, हमें देखने वाले लोग होते थे कि तुम क्या कर रहे हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अपने बच्चों में स्किल्स को डेवलप कराइए, और वो एक दिन में नहीं होती। मैं इसका एक सिंपल उदाहरण दूंगी। मैंने भी अपने बच्चों पर काम किया है, हालांकि मुझे इसके लिए अपोजिशन भी झेलना पड़ा। क्या कर लोगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बच्चों को डाल के, क्या फर्क पड़ेगा? पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना चाहिए उन्हें। मैंने कहा नहीं, ये मुझे ऐसा खुद लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से आपकी सोच अच्छी होती है, आप चुस्त होते हो, आप बेबाक भी होते हो। आप कहीं जाके मुफट, इसे मुफट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे अपना बारे में जानकारी हासिल करना। आप कहीं भी पहुंच गए, आप दो बच्चे लीजिए, एक जो बिल्कुल क्लास में बैठा रहता है, पढ़ाई में अव्वल है, और दूसरा लीजिए जो एक अच्छा पढ़ता भी है और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। रोड पे उन दोनों बच्चों को छोड़ दीजिए, दोनों को ये बोल दीजिए वहां पहुंचना है। जो बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा उसको मुश्किलात ज्यादा आएगी, और जो थोड़ा सा इन एक्टिविटीज में एक्टिव होगा वो उस काम को जल्दी करेगा, चार लोगों से पूछताछ करके जल्दी पहुंचेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ अच्छा पढ़ने वाला नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा, लेकिन उसके अंदर वो जो और उसकी स्किल्स है उसको कभी डेवलप ही नहीं होने दिया गया। होती सबके अंदर है, लेकिन उसको इन कामों में दिक्कत आएगी, और जब वो बड़ा हो जाएगा इन दिक्कतों का जो वो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। फिर पेरेंट्स कहते हैं तुम ये भी नहीं कर सकते, ये तो सारी दुनिया कर रही है। अरे जब हमें मौका ही नहीं मिला उस चीज को डेवलप करने का, तो एक दिन में मैं कैसे डेवलप कर लूंगा बड़े होके? तो इन छोटी छोटी चीजों पे, और उसके लिए समर वेकेशन से अच्छा कुछ नहीं है। दैट्स अ टाइम जब आप अपने बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ, मैं ये कहती हूँ अगर एक दिन भी आपका बच्चा कुछ सीखता है ना, वो उसके काम जिंदगी भर आना है। बहुत सारे माँ बाप को, मेरे फादर जो है वो बोलते हैं ये करके क्या कर लोगे? आई हैव हर्ड ऑल दीज वर्ड्स। इससे क्या हासिल करोगे? हर चीज पेपर पर ग्रेड के फॉर्म में हमारे सामने नहीं आ सकती। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दूंगी। मैंने अपने बच्चों को हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में डाल के रखा। ऐसा नहीं था कि वो ब्रिलियंट थे, कई बार उन्हें बिल्कुल आखिरी में भी जगह मिलती थी। कभी उनका मौका लगता था तो फ्रंट में आ जाते थे। वो उनकी क्लास में रैपो के ऊपर था कि वो टीचर से क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं। उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। मेरा रोल था सिर्फ उन्हें गाइड करना कि भाई जो भी अतिरिक्त एक्टिविटीज होती हैं उनमें तुम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। मम्मी हम तो दिखते ही नहीं है, सबसे पीछे। मैंने कहा कोई बात नहीं। आती थी ऐसी शिकायत, जब वो मेरी छोटी वाली बहुत छोटी थी, वो यही कहती थी मम्मी मैं तो सबसे पीछे हूँ, आप मुझे ना देख पाओगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मम्मी की आंखें दूरबीन से भी तेज होती हैं, तुम कहीं भी खड़ी होगी आप दिखाई दोगी। हालांकि हकीकत ये मुझे वो दिखती नहीं थी क्योंकि बहुत अब पीछे होती थी, लेकिन उसको फायदा हुआ। कहीं ना कहीं
अब कल एक लाइव सेशन हो रहा था जिसमें हम मेंस्ट्रुएशन डे था कल, उस पर बातचीत कर रहे थे। देखिए मेरे बच्चे भी कल पहली बार मैदान में उतरे, मुझे भी नहीं पता था उनके अंदर वो क्या बोलेंगे, कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था। बट ये जो धीरे धीरे उन्होंने वो हरकतें वहां पहले ली थी, घर में भी इनका वो रूप मैंने नहीं देखा था, ऑनलाइन ही मुझे वो चीज दिखाई दी कि कॉन्फिडेंस है और जितना है मैं उससे खुश हूं एज अ पेरेंट। Fantastic. मेरे को अपने बच्चे सुपर ह्यूमन नहीं चाहिए, एक एवरेज बच्चे चाहिए जो अगर मेरे को आज कुछ हो जाए, मैं बिल्कुल सीधी बात कर रही हूँ एज अ मदर, मुझे अगर आज कुछ हो जाए तो वो अपना जीवन चला पाए। दैट्स ऑल। एक माँ की यही सबसे बड़ी इच्छा होती है, क्योंकि जीवन का हमें कुछ नहीं पता, कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, नहीं आए बहुत बढ़िया, हम चल ही रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। बट हमें अपने बच्चों को जितनी जल्दी हो सके एम्पावर और सक्षम करना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स नहीं करते हैं, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। उनको लगता है छोटे बच्चों को बिठा के हमें पानी देना चाहिए, खाना देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप अगर आज उनसे काम कराएंगे तो आप अपना नहीं उनका फायदा करेंगे, उनको सक्षम बनाएंगे। उनको पता है अपनी थाली लेकर आनी है, अपनी थाली वापस रखनी है, वो किसी पे बोझ नहीं बन सकते। कितनी भी कठिन सिचुएशन हो वो सरवाइव कर जाएंगे। मैं माँ बाप के प्यार को मना नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल करिए, मैं भी करती हूँ, लेकिन वो काम के तौर पर नहीं। और एक चीज बता दूं, काम करना आसान है बच्चों के लिए, उनसे काम करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर वो उस तरह से नहीं करेंगे जितनी सफाई से आप करते हैं। गंदगी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा संयम रखेंगे तो थोड़े दिन में पाएंगे कि वो आपसे भी आगे निकल जाएंगे। Right. वो आपको टिप्स दे रहे होंगे कि आप क्या कर रही हो मम्मा, ऐसे नहीं ऐसे होता है ये। माय किड्स दे टेल मी, आप अपना कमरा कितना गंदा रखती हो, हमारा देखो कितना चमक रहा है। सो देयर कम दोस टिप्स, बट इट्स नाइस टू हियर, अच्छी चीज है। आपके बच्चे जब आपको टिप्स देने लगे, दैट मीन्स दे आर ग्रोइंग अप। आपने उनको उस लायक, उस रास्ते पे डाल दिया है। देखिए हम अकेले लायक नहीं बना सकते, उसमें सिर्फ पेरेंट का ही रोल नहीं होता, टीचर्स का भी भरपूर रोल होता है। मैं तो अपने बच्चों को यही बोलती हूँ, कभी कभी किसी टीचर से वो इरिटेट भी हो जाते हैं तो भी यही कहती हूँ, भाई कुछ सिखा ही रही है तुम्हें, सीख लो, जितना खींच सकते हो खींचो। और गुरु हमेशा आदरणीय होता है। तो ये सारी चीजें तो हैं। कई टीचर्स भी स्ट्रेस्ड होते हैं आजकल, मारामारी ज्यादा है, तो वो कभी कभी बच्चों पर निकल भी जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सिखाते बहुत कुछ हैं टीचर्स, तो हमें उनकी रेस्पेक्ट तो हमेशा करनी चाहिए। यही हमने अपने माँ बाप से सीखा है, यही शायद हम आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। तो हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो बेसिकली है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाना। ये एक ऐसी चीज है, अगर ये आ जाएगा तो उसके आगे मुझे लगता है वो सीखने में तो खुद ही एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि आजकल यूट्यूब और इन सब चीजों पे आप सोशल मीडिया पे बच्चे एक्टिव हैं, आपस में बातें भी खूब करते हैं, चाहे वो आपका 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। दैट स्टार्ट्स। तो आपको जरूरी है कि अब कॉन्फिडेंस किन किन चीजों से आता है। कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीजों से आता है। अगर आपके बच्चों को डांस करने का शौक है, कॉन्फिडेंस उससे भी आएगा। क्योंकि देखिए पहले वो सीखेंगे, फिर वो किसी ग्रुप में डांस करने जाएंगे। मेरे बच्चों के साथ हुआ था, मेरे यहाँ नाच गाने पे कोई पसंद नहीं करता, ना मेरे माता पिता के घर में, और ना ही मतलब एक हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है कि अगर कोई सीखना चाहे तो उस पर कोई बहुत खुशी जाहिर करेगा, ना ही मेरे ससुराल साइड। लेकिन बच्चियों को शौक था, इन्होंने किया, और इनको 2-3 बार सोसाइटी के थ्रू ही स्टेज पर जाने का मौका मिला। उसका फर्क पड़ा। मेरी छोटी वाली बेटी बहुत शर्मीली है, बहुत ज्यादा चुप और शर्मीली, अभी भी है वो शर्मीली, लेकिन इन छोटे छोटे एक्ट से ना थोड़ा इसमें फायदा क्या होता है। देखिए आप ग्रुप में जाओगे, वहां पर 4 लोगों से बात करोगे, ना चाहते हुए भी, माँ बाप नहीं है वहां पे, खुद ही करना है जो करना है। आप एक बार चुप लगा जाओगे, 2 बार चुप लगा जाओगे, तीसरी बार तो जबान अपने आप खोलोगे, कोऑर्डिनेट करोगे, दिक्कत हो रही है, अपने टीचर से बात करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी निखर कर आती है। इसलिए जहां पर भी बोलचाल का मौका है, अपने बच्चों को आगे आने दीजिए। ये मत सोचिए कि अरे 5 मिनट में वो क्या सीख लेगा, 1 घंटे की क्लास है। बहुत लोगों को ये होता है 1 घंटे की क्लास है, उसको अगर टाइम मिला भी
5 ही मिनट तो बोलेगा, लेकिन आप ये भूल गए वो 55 मिनट जो बाकी हैं उसमें वो देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। और कोई भी स्किल बोलने वाली हो तो बहुत बहुत जरूरी है कि आप उसमें ध्यान दें। बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट जरूर करवाइए। दूसरा है एक बेहतरीन, धीरज सर आपको मेरे को को होस्ट बनाना पड़ेगा ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। अभी कर देता हूँ तुरंत। और दूसरी चीज है स्टोरी टेलिंग। हालांकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो दादी नानियों के टाइम की चीजें थी। Now try to छोटे share. छोटे छोटे बच्चों को अब हो रहा है सर। ठीक है। वाओ। तो सबसे पहला तो है पब्लिक स्पीकिंग। 1 सेकेंड। सो पब्लिक स्पीकिंग जो हम लोग करवाएंगे वो 7 साल से 10 साल के बच्चों को और 11 से 15 साल, 21 दिन का ये कोर्स है। लगातार बच्चों को अटेंड करना है 1 घंटा डेली। ओके। और इसका एडवांटेज क्या है? बेसिक लाइफ स्किल है। आपको किसी से भी कहीं पर भी अपनी बात कहनी आनी चाहिए, और ये सबसे मुश्किल चीज है। ये तो धीरज सर बता सकते हैं, ईशान भी बता सकता है। जब हम पहली बार हम बाहर जाते हैं तो कितनी दिक्कत होती है बाहर निकलकर। आराधना जी भी जब बाहर जाती होंगी, किसी से बात करती होंगी, याद कीजिए जब शुरुआत के दिन थे बहुत डिफिकल्टी आती है। तो ये अगर आपके बच्चे खुले हुए होंगे तो उनको कई चीजों में फायदा मिलेगा। क्या नौकरी, क्या कोई भी छोटे से छोटा काम। कई बार हम अपने पड़ोसियों से मदद भी नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर झिझक होती है। तो ये हर तरह से कारगर है, हर तरह से। तो इस पर मुझे लगता है हर पेरेंट्स को वर्कआउट करना चाहिए, जहां मौका लग जाए, जितने दिन का भी आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं आप इसी में आए, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। लेकिन सिर्फ ये समझिए कि जहां पर भी बोलने वाली क्लास हो, कम्युनिकेशन की क्लास हो, देखिए इसमें कोई ग्रामर नहीं है, कोई लिखावट नहीं है। ये पूरा 1 घंटा बोलने पे व्यतीत होगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि स्कूल में हम जो करते हैं वहां लिखते ज्यादा है, तो लिखावट हमारी अच्छी होती है। जब हम यहाँ बोलेंगे ज्यादा और 55 मिनट सुनेंगे तो डेफिनेटली हमारी बोली अच्छी होगी। दूसरी चीज, ऑन द स्पॉट बोलना। कोई चीज डिस्कस हो रही है और आपसे एकदम से पूछा जाए और उस पर अपने विचार व्यक्त कर सको, तो इट इज डिफरेंट एब्सोल्युटली पब्लिक स्पीकिंग में। फैंटास्टिक, दिस इज गुड। नेक्स्ट जो, हाँ, थैंक यू सो मच धीरज सर। दूसरा है आपका स्टोरी टेलिंग। कहानियों में बहुत कुछ होता है। कहानियों में हमें लाइफ स्किल सीखने को मिलती है कि क्या हमें अपने साथियों से प्यार करना चाहिए, और क्या हमें सबका ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए। हर कहानी के पीछे, और एक कहानी के एक मॉरल नहीं, हजारों मॉरल निकलते हैं। हर बच्चा अपने तरीके से उस कहानी को देखता है। क्योंकि देखिए किताबों में तो कहानी का एक ही मॉरल निकल कर आता है, लेकिन जब कहानी सुनाई जाती है, समझी जाती है, तो उसके कई मॉरल्स निकलते हैं, और हर बच्चा अपना मॉरल खुद बताएगा इसमें। एक तो हो गया जो कहानी बताई रही है मोटा मोटा, आपने सीखा क्या इससे। दूसरा, शब्द आप बहुत सारे सीखते हैं कहानियों से, जिससे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है। आपकी सोचने की एनालिटिकल स्किल्स जिसे हम कहते हैं, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन जिसे हम कहते हैं ना, ये तो कुछ सोच ही नहीं पाता। अरे जब उसको वो मौका ही नहीं मिला। हर बच्चा सोच सकता है। आप खुद सोचिए, आपको थोड़ी देर बिल्कुल रिलैक्स कर दिया जाए, काम धाम से हटा दिया जाए, और खूबसूरत पिक्चर्स दे दिए जाए, तो शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। सोच कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी की मिल्कियत हो। हर आदमी सोच सकता है, हर बच्चा सोच सकता है, लेकिन उसको डेवलप करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमें ऑटोमेटिकली वो चीज मिलती है, हमें इसको डेवलप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हम बोलते हैं ना, इसको तो कोई भी सिचुएशन दे दो, ये ना सॉल्व कर पाएगा। हम मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर ने अभी बोला कोविड की प्रॉब्लम आई है, बिल्कुल चल रही है हमारे चारों तरफ। मैं कोविड के लिए ही नहीं कहूंगी कि बच्चों को लाइफ स्किल्स आनी चाहिए या खाना बनाना आना चाहिए, उन्हें खुद के लिए भी आना चाहिए। आजकल बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर निकलते हैं, बीमार हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि खुद नहीं खाना बना पाते। ये कहाँ लिखा है कि लड़के खाना नहीं बना सकते? इट शुड नेवर बी जेंडर बाइस्ड। और आजकल तो लड़कियों को भी मुश्किल से आता है बनाना, तो सबको आना चाहिए। और उसमें अगर मम्मी की हेल्प हो रही है
नथिंग रॉन्ग, इट्स एड ऑन है उस पे, केक के ऊपर चेरी है वो। आप हेल्प भी ले रहे हो बच्चों से, घर भी सुधरा हुआ है, क्योंकि घर में काम बहुत होता है। एंड अ चाइल्ड विल अंडरस्टैंड ओनली व्हेन द चाइल्ड इज हेल्पिंग यू, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। हर लड़का सिलाई कढ़ाई खाना बना सकता है, हर लड़की ड्राइविंग, और ये सारी बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को आनी ही चाहिए। तो अगर हम स्टोरीज की बात करते हैं तो स्टोरी का जो हमारा कोर्स है वो 10 दिन का है। आप हिंदी में करिए या इंग्लिश में करिए, 2 मोड है उसको करवाने के। पब्लिक स्पीकिंग वुड बी इन इंग्लिश, उसमें बच्चा थोड़ा सा हिंदी के साथ इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन हम प्रेफर इंग्लिश करते हैं उसमें, ताकि उसका कॉन्फिडेंस और अप हो। वो कम बोले लेकिन कोशिश करे। बट हिंदी की और इंग्लिश की कहानियां अलग अलग हैं, और बच्चा 20 दिन भी कर सकता है इनको। तो इंग्लिश में इंग्लिश की वोकैबुलरी डेवलप होगी, हिंदी में हिंदी की वोकैबुलरी डेवलप होगी। एंड इसमें विजुअलाइजेशन तो बहुत अच्छा होता है बच्चों का। एंड स्पेशली जब छोटे होते हैं तो उन्हें मॉरल नहीं पता होता, लेकिन जो ये एज है 7 से 10 साल के बच्चों के लिए ये वाला कोर्स, फिलहाल हमने 10 से 15 के लिए नहीं रखा है। इट इज ओनली फॉर 7 to 10 years, बिकॉज दिस इज द एज वेयर मैक्सिमम इमेजिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन आर देयर। और इन सब चीजों को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को, तो उनका जो आपका गैजेट टाइम है वो ऑटोमेटिकली कम होता है। दूसरा, गैजेट टाइम के साथ साथ अगर वो गैजेट पे ढूंढेंगे तो इससे रिलेटेड चीजें ही ढूंढेंगे। आप उनकी दिशा भी बदल रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं उनकी सोच को। रीडर बनेंगे, जब कहानियां उनको सुनने का शौक होगा तो पढ़ने का भी शौक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो क्रिएटिव ज्यादा होंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है ऑफिस में, नौकरी में, कहीं पर भी हर जगह रिक्वायर्ड है। तो आई थिंक विद दिस सर एंड ओवरऑल पर्सनालिटी, लास्ट पॉइंट उठाऊंगी मैं यहाँ पर, ओवरऑल पर्सनालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। So with this, I think I would like to end my things. Okay. मुझे लगता है समर वेकेशन इज अ टाइम जब आप मैक्सिमम अपने आप को, हालांकि दिन कम है हमें, लेकिन हमें परफेक्ट नहीं बनना है। हमें सिर्फ वो चिंगारी बच्चों के अंदर डालनी है, बाकी आग बच्चे खुद लगाते हैं। यहाँ मैं फायर की बात कर रही हूँ, पर्सनालिटी की फायर की बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन की फायर की बात कर रही हूँ, लर्निंग की फायर की बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच इना मैम, आपने बहुत बढ़िया गाइड किया हम लोगों को, राइट। और बिकॉज हमारे पास सिर्फ लास्ट 2 मिनट्स है, सो ईशान, व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप अपने आपको मैं वापस लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वाले प्रेजेंटेशन सेशन में, जहाँ की आप किसी अलग टॉपिक पे यू कैन टेल। अभी आपके पास 1 मिनट है, इफ यू वांट टू से समथिंग। A very warm good evening to all of you. Myself Ishan, and I'm a student of philosophy as well as psychology. So I remember, I just want to share a small story. There was a page in my room on my study table. Suddenly, air blew and the page fly. That page is me, and the air is distraction. Simple thing is, if there is a weight on me, I can't fly. और वो वेट क्या है? Responsibility of family, of myself, like education or some desires. These are the weightage on me. फैंटास्टिक। एक छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि हमारा बच्चा एक, या हम एक पेज हैं और डिस्ट्रैक्शन है वो हवा है। जितना हमारे अंदर वेट रहेगा, मतलब एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी, उतना ही हम कम डिस्ट्रैक्ट होंगे, कम फ्लाई करेंगे। सो हमें देखना है कैसे हम मिलजुल कर बच्चों के अंदर में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैच्योरिटी हम डेवलप कर सकते हैं। आई थिंक काफ़ी कुछ हमने आज डिस्कस कर लिया है। आराधना, यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, या भी कुछ आपको कहना था आप कह सकती हैं आप। मुझे अच्छा लगा सुन करके सभी के जो व्यूज थे समर वेकेशन से रिलेटेड, एंड इट्स डेफिनेटली हैज गिवन अ प्रॉपर गाइडेंस कि वाकई समर वेकेशन को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है। बट